Students, I am Ajay Sir from Vivekananda School, Bani. Now we start the next topic of class 12th, subject physics, Ampere circuital law. In electrostatics, we have studied Gauss law as an alternative law of the Coulomb's law. आपने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, क्या होता है गॉस लॉ? ओके, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो 1/ε0 टाइम्स दी होती है चार्ज कंटेनमेंट. एग्जैक्टली इन द सेम वे एम्पियर सर्किटल लॉ इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. तो जो गॉस लॉ था वो कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव था, और इसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ जो है बायो-सावर्ट लॉ आपने किया है μ0/4 πI/dl/r, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म है. The Ampere circuital law is quite general. We use this law to calculate magnetic field in a symmetric situation. तो इसका यूज़ आप क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए करते हो. Consider an open surface with a boundary C. कोई सरफेस कंसीडर करो जिसकी बाउंड्री C है, और द करंट I इज पासिंग थ्रू द सरफेस. करंट I उसके सरफेस में से पास हो रहा है. Let the boundary C be made of large number of small line elements, each of length dl. Okay, boundary is made with small little element, that is each element is dl. The direction of dl of same small line element under study is acting tangentially to its length dl. जो I है di करंट है वो tangentially जा रहा है dl लेंथ के अंदर. Let Bt be the tangential component of magnetic field induction in this element. Bt जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी उस छोटे से कंपोनेंट के अंदर. Then Bt and dl are acting in the same direction. जो Bt है और dl है वो सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं. एंगल बिटवीन देम 0 है. We take the product of Bt and dl for that element. तो हम प्रोडक्ट लेंगे Bt dl is equal to B into dl. ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा. सिंपल आपने क्या करना है, Bt dl और B dl को इक्वेट करना है. ओके, इफ लेंथ dl इज वेरी स्मॉल, मान लो लेंथ dl है बहुत स्मॉल है, तो प्रोड्यूस फॉर ऑल एलिमेंट क्लोज्ड बाउंड्री. आपको पता है वो एक क्लोज्ड सर्किट है. देन सम करना जरूरी है, इंटीग्रेशन जरूरी है. तो क्लोज्ड पाथ और लूप का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन उसका. Therefore sum of B dl over all the element on a closed path, that is the surface integral of B dl, is equal to the line integral of B around the closed path or loop whose boundary coincided with the closed path. Ampere circuital law states that the integral is equal to the mu naught times the total current passing through the surface. Okay, वाला जो इंटीग्रल इक्वल है B dl का वो mu naught टाइम द चार्ज कंटेनेंट करंट कंटेनेंट. उसमें क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड की जगह उसमें था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम द चार्ज कंटेनेंट था. तो ये इसके अंदर चेंज आया है. When I is the total current threading the closed path, I total current है, mu naught absolute permeability है. The relation involves a sign convention given as right hand rule. तो आप right hand rule भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्शन पता करने के लिए. According to this rule, when finger of right triangle are called in this sense, the boundary is transformed in a loop integral B dl, then the direction of thumbs gives sense of current. जो direction of thumb होगा वो करंट बताएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. According to sign convention आप यूज कर रहे हो. मान लो कोई क्लोज्ड पाथ है, उसमें जो करंट जा रहा है वो I1 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव है. तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई होगा? दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B dl इज इक्वल टू mu naught I1 minus I2. जो पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव? I1, तो I1 में से I2 माइनस हो जाएगा तो mu naught I आ जाएगा. जो IE है वो टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय लूप, IE वो टोटल करंट आ जाएगा. Relation 19 is independent of the size and shape of the closed path. साइज और शेप पे नहीं डिपेंड करेगा वो.
नेक्स्ट है Thus, Ampere's circular law states that the line integral of magnetic field B around any closed path is in its free surface is equal to the absolute permeability mu naught time the net charge passing through its surface enclosed by closed path, that is the B dl is equal to mu naught I. तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे. प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्क्यूलर लॉ टेकिंग ए सर्क्यूलर क्लोज्ड पाथ का एक प्रूफ लेना है. आपने सबसे पहले कंसीडर करना है लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई प्लेन ऑफ पेपर में पड़ी हुई है जिसमें से आई करंट जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसका फार्मूला क्या होगा जो आप करके आए हो, B इज इक्वल टू म्यू नोट 2I बाय में 4 पाई आर. ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, म्यू नोट I बाय में 2 पाई आर हो जाएगा. B जो होगा वो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये तो आपको पता है, टेंजेंट डायरेक्शन बताता है उसका. अब आपने क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट dl कट करना है, क्लोज्ड पाथ एट p पॉइंट के ऊपर. द डायरेक्शन ऑफ b dl इज सेम. जो b और dl की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी. एंगल बिटवीन देम इज 0 क्योंकि एंगल उनके बीच में 0 होगा. Thus, जो लाइन इंटीग्रल आप अप्लाई करोगे दैट इज द b dl इज इक्वल टू b dl cos 0. cos इनके बीच में 0 है. b इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ dl cos 0 आपको पता है 1 होता है. तो b की वैल्यू पुट करोगे म्यू नॉट I बाय में 2 पाई आर. dl का इंटीग्रेशन करोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट, दैट इज द म्यू नॉट I आ जाएगा. ओके, तो ये उसका प्रूफ हो जाएगा. आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे प्रूफ किया है. ओके, बहुत सिंपल सा था. नेक्स्ट उसका एक अनदर प्रूफ है, प्रूफ ऑफ प्योर सर्क्यूलर लॉ टेकिंग एनी आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ. एक आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ लेके छोटे छोटे कंपोनेंट काटेंगे और उनका समेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. कंसीडर एनी आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY कैरिंग करंट I जा रहा है. ये देखो सेकंड फिगर के अंदर I करंट जा रहा है X2Y के अंदर. Lying in a plane of paper closed path आपने नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट कट कर दिए. AB DL1 हो गया, नेक्स्ट BC DL2 हो गया, CD DL3 हो गया. तो 3 कंपोनेंट लेके चलते हैं. तो इनके एंगल उसके से एंगल जो होंगे θ1 θ2 θ3 हो जाएगा. टोटल एंगल 2 पाई आ जाएगा. ओके, तो आपको पता है कि एंगल जो होता है वो आर्क बाय में रेडियस होता है. तो d θ1 इज इक्वल टू dl1 बाय में r1. तो इस अकॉर्डिंग से तीनों का फार्मूला बन जाएगा. अब आपको पता है B1 B2 मैग्नेटिक फील्ड होगी तीनों की. B1 क्या होगा, म्यू नॉट 2I बाय में 4 पाई r1. तो तीनों की अलग अलग हो जाएगी. आपने इन सभी का लाइन इंटीग्रल करना है. ओके, तो लाइन इंटीग्रल करोगे तो B इंटू dl इज इक्वल टू B1 dl1 B2 dl2 प्लस B3 dl3. तो यहाँ पे dl1 की आप वैल्यू पुट करोगे. आपको पता है dl1 की जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पे θ1 दे रखा है तो यहाँ पे θ1 इंटू r1 हो जाएगा dl1. ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे dl1 की. बाकी आपको पता है b1 की म्यू नॉट 4 पाई 2I बाय में r1, dl1 रहेगा dl2 dl3, dl1 बाय में r1 dl2 बाय r2. तो इस तरीके से हो जाएगा. तो इस तरीके से 2I θ1 प्लस θ2 और r आएगा. r जो है वो कट जाएगा r से और उन टोटल सम आएगा एंगल्स का 2 पाई आ जाएगा. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट I आ जाएगा. अब ये प्रूफ हो जाएगा. ओके, तो ये दिस इज द प्रूफ. ये आपका प्रूफ है. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्क्यूलर लॉ. क्या एप्लीकेशन? एम्पियर सर्क्यूलर लॉ इज द सिंपल टूल फॉर एवल्यूटिंग easily the magnetic field at a point due to current. While finding the magnetic field due to current using Ampere circular law, we shall have to choose a closed curve. पर लूप हमें closed curve जरूरी है. और क्या क्या जरूरी है? B is tangent to the loop and B is non-zero constant होना चाहिए. B is normal to loop, B vanish. Okay, तो इस तरीके से valid the length of the loop, B is tangential and I is the total current enclosed by the loop. According to Ampere circular law, B dl is equal to BL mu naught I हो जाएगा. This is the proof. तो आज हम इतना ही करेंगे. I hope you will understand Ampere circular law. Take care, stay home, stay safe. Bye.